Hello everyone. So we are here with class 10th English. See here, class 10, Footprints Without Feet. Chapter 7, The Necklace, written by Guy D. Maupassant. There are some of the word meanings I have written here. While they will come in the story, I will make you understand. The necklace, we have done almost the first part, where the Matilda Loisel lost her necklace. Alright, let's proceed now. So when Matilda Loisel with her husband came back from the party, and nearly in the wee hours of the morning of the day, they came back. करीब 4 o'clock, 5 o'clock का time हो गया था. Now the husband was thinking that he has to go to office also. Matilda Loisel thought that she was looking very beautiful. Really, she was looking very beautiful because many men wanted to be presented before her. And when she stood in front of the mirror to have a final look, how she was looking in the party. When she saw herself, she gave a shout, काफी जोर से चीखी. Why? Because the necklace was not around her neck, and it was a diamond necklace, and it was borrowed. ये उधार लिया गया था, खुद का नहीं था. When we lose something of ours, हमारी कोई चीज़ अगर खो जाती है, no problem, that's ours, no problem, कोई problem नहीं है. But if that belongs to somebody else, किसी और की अगर वो चीज़ होती है, तो हमारी इंसल्ट हुई वहाँ पे. वो पता नहीं क्या सोचेगा कि खैर इसने खुद रख लिया हो, या कुछ भी सोच सकता है. तो आगे बढ़ते हैं हम. Loisel already half undressed, asked, "What is the matter?" वो लगभग ड्रेस चेंज कर रहा था, सोचा था थोड़ा सो लेगा वो, फिर ऑफिस भी जाना है 10 o'clock पे. लगभग हाफ ड्रेस पहना था उसने, हाफ ड्रेस नहीं था, मतलब सोने के लिए रेडी हो रहा है. बोला, "What is the matter?" लॉयजल से पूछा. मैडम लॉयजल. She turned towards him excitedly. I no longer have Madame First Year's necklace. बोले, मेरे पास मैडम फर्स्ट ईयर का नेकलेस नहीं है, जो मैं वहां से उससे उधार लाई थी, वो नहीं है. पता नहीं कहाँ चला गया. He arose in dismay. What? How is that? It's not possible. वो भी सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया. क्या कह रही हो? ये पॉसिबल नहीं है. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. जो ड्रेस में फोल्ड्स जो थी, मुड़े हुए थे, वहां पर देखा शायद यहाँ पे होगी नीचे, लेकिन होगा शायद, नेकलेस नहीं मिला. लेकिन पॉकेट्स वगैरह में देख लिया, शायद पॉकेट में डाल दिया होगा, ड्रेस के पॉकेट में नहीं मिला. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" हस्बैंड ने पूछा वाइफ से कि क्या तुम श्योर हो, जब हम लोग मिनिस्टर का घर जहाँ पार्टी में गए थे, वो घर जब हमने छोड़ा था, तो क्या तब ये नेकलेस वहां पे था, तुम्हारे गले में था? Yes, I felt it as we came out. मैंने फील किया था कि मेरे गले में नेकलेस है. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. उसके हस्बैंड ने बोला कि अगर तुमने ये स्ट्रीट में गिराया होगा, स्ट्रीट में अगर गिरा है ये, तो हमें ये गिरने की आवाज सुनाई देती कि नेकलेस गिरा ये. ऐसा भी हो सकता है कि जिस कैब में हम लोग आए ना, उस कैब में गिरा होगा. Yes, it's possible. Did you take the number? उसकी वाइफ पूछ रही है कि हाँ हो सकता है, तुमने नंबर नोट किया था? अपने हस्बैंड से कह रही है. No, and you? Did you notice what it was? हस्बैंड ने बोला, नहीं, मैंने नोट नहीं किया था, नोटिस नहीं किया था. क्या तुमने नोटिस किया था? क्या नंबर था? नो.
वाइफ कह रही है कि मैंने भी नहीं किया. They looked at each other utterly downcast. Cast down. Sad होकर के दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे. Finally, Loisel dressed himself again. फिर से ड्रेस पहनी Loisel ने, मिस्टर Loisel ने, हस्बैंड ने. I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. हस्बैंड ने बोला कि मैं जा रहा हूं, उन रास्तों से मैं होकर के जाऊंगा जिन रास्तों से हम लोग आए हैं. अगर मिल जाए तो मैं देख के आता हूं. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. वो गया और जो इवनिंग ड्रेस गाउन जो पहनी हुई थी वो उसी ड्रेस में थे, चेंज नहीं किया था मटिल्डा लॉयजल ने. और नींद भी नहीं आ रही थी, सोने का भी मन नहीं कर रहा था. कहां से मन करेगा, डायमंड नेकलेस है और किसी और का है. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. 7 o'clock मॉर्निंग हो गई और तब उसका हस्बैंड वापस आया, लेकिन कुछ नहीं मिला. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. पुलिस स्टेशन गया हो हस्बैंड, कैब ऑफिसेज जो गाड़ियां जो चलती है उस तरह की, वहां गई, ऑफिस भी होता है, वहां गया कि शायद उस गाड़ी वाले का पता चल जाए, गाड़ी में कैब में नेकलेस मिल जाए. एडवर्टाइजमेंट भी दे दी एक कि अगर किसी को ये नेकलेस मिले तो हम लोग एक रिवॉर्ड भी ऑफर कर दिए कि रिवॉर्ड दिया जाएगा. शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. First, let me tell you difference between award and reward. Award means what? Which is known by all. जो सभी जानते हैं. Like अर्जुना अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, ये सारे सभी लोग जानते हैं. They have been fixed. Reward, what happens? Reward we make, हम बनाते हैं. अगर हम कहें कि रेस करते हैं और जो फर्स्ट आएगा उसे एक डायरी दी जाएगी, उसे एक पेन दिया जाएगा, उसे एक बुक दी जाएगी. वो बुक दी जाएगी, पेन, डायरी, कुछ भी जो कह रहे हैं हम लोग, ये है रिवॉर्ड जो हम बनाते हैं. वेट कर रहे थे अपने हस्बैंड का. जब हस्बैंड आया इवनिंग के वक्त, उदास, सैड लग रहा था, कुछ नहीं मिल पाया था इवनिंग तक. 7 o'clock में वापस आ गए, फिर गया वो. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. कहा कि तुम अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख दो. हस्बैंड ने समझा अपनी वाइफ को. लेटर लिख दो, उसमें ये बोल दो कि नेकलेस का एक क्लास्प टूट गया है. क्लास्प मतलब वो धागा जिससे डायमंड्स बंधे होते हैं, उस जो ज्वाइन करके रखता है अलग अलग डायमंड्स को, वो कहलाता है क्लास्प. और कहा कि तुम कहोगे कि रिपेयर करवा के दूंगी, मैं रिपेयर के लिए मैंने दिया है, तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मतलब हमें टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा. शी रोड एज ही डिक्टेटेड. जैसा बोला हस्बैंड ने वैसे ही लिख दिया लेटर. एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉयजल, older by 5 years, declared, we must replace this jewel. 1 week का टाइम खत्म हो गया और जितने भी होप्स थे वो सारी उम्मीदें खत्म हो गई, होप्स खत्म हो गई कि अब नेकलेस नहीं मिल सकता है. लॉयजल, मिस्टर लॉयजल, वो जितने एज का वो दिख रहा था उससे 5 years ज्यादा का एज दिख रहा है. अगर उसकी एज उस वक्त 30 थी तो अब वो 35 का दिख रहा है. अगर उस वक्त वो 40 का था तो 45 का दिख रहा है 1 week बाद. What happens that in the tragedy moments when we are in sad condition, we are sad, हम sad होते हैं और sad की वजह से ब्राइटनेस खत्म हो जाता है, हमारे चेहरे का ब्राइटनेस खत्म हो जाता है और हम ज़्यादा ओल्डर दिखने लग जाते हैं. So we must be happy all the time. यहाँ तो ट्रेजेडी हो गई, प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ तो
नेचुरल है, ये होगा ही, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम छोटी छोटी बातों में उदास हो जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, उदास हमें नहीं होना चाहिए। बोला कि 1 वीक के बाद कि हमें तो रिप्लेस कर देना होगा, यानी कि उसको वापस करना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स excuse me, which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. एक शॉप थी, नाम था उसका पैलेस, PALAIS, पैलेस रॉयल। वहां पे जैसा डायमंड नेकलेस वो लेकर के आई थी अपने फ्रेंड से, ठीक वैसा ही डायमंड नेकलेस वहां पे दिखाई दिया, लेकिन उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक्स। और बार्गेनिंग के लिए ना डिस्काउंट कंसेशन वगैरह करके शॉपकीपर उसे 36,000 फ्रैंक्स में दे देता है। लॉयजल possessed 18,000 फ्रैंक्स। लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, यानी कि और भी 18,000 फ्रैंक्स चाहिए। Which his father had left him. ये 18,000 फ्रैंक्स लॉयजल के फादर दे करके गए थे अपने बेटे को, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो ये तुम यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम का टाइम आ गया था। He borrowed the rest, बाकी पैसे बोरो कर लिए, उधार कर लिया, यानी 18,000 फ्रैंक्स बोरो किया। He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. उसने बर्बाद कर देने वाले प्रोमिसेस कर दिए। बर्बाद कर देने वाले मतलब क्या? अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी इनकम जो है मंथ में 10,000 रुपीज़ है और कहीं से हमने क्रेडिट ले लिया, बोले कि मैं तुम्हें 8,000 रुपीज़ ईच मंथ दे दूंगा, तो 8,000 अगर मैं उसी को दे दूंगा तो 2,000 रुपीज़ में मेरा घर चलेगा कैसे? मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा कैसे अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को? तो ये रुइनस प्रॉमिस हो जाएगा। तो वैसे ही प्रॉमिस इसने किया। उसने क्या किया था? यूजरर्स से पैसे उधार लिए। हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है मैंने, यू कैन सी इट। यूजरर, वन हु लेंड्स मनी ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो पैसे उधार देता है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है उसका। और भी जो लेंडर्स थे, महाजन वगैरह, उन सभी से भी उधार लिया और कोई ऑप्शन था नहीं। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर न्यू नेकलेस खरीद लिया। पैसे का अरेंजमेंट करने के बाद न्यू नेकलेस ले लिया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। मर्चेंट का काउंटर जो था, शॉपकीपर का काउंटर, जहाँ पे कैश जमा किया जाता था, डिपॉजिट किया जाता था, वहां पे 36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिट कर दिए और नेकलेस खरीद लिया। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Fostier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." Madame Loisel जब उस ज्वेल को लेके गई मैडम फस्टियर के पास, मैडम फस्टियर के पास लेके गई, तो लेटर, LATT है, लेटर मतलब बाद वाला पर्सन, ये बाद वाली चीज। फॉर्मर, FORMR, प्रीवियस वन, हम कहेंगे A and B are friends. A and B are friends. The former is older. Former means पहले वाले, A का जिक्र पहले किया है तो वो फॉर्मर हो जाएगा। ओल्डर, ये बड़ा है। The latter is younger. लेटर LATTER, जो बाद में जिसका जिक्र हुआ है वो यंगर है, यानी कि बी यंगर है। फॉर्मर प्रीवियस होगा, लेटर होगा नेक्स्ट वन, बाद वाला। तो द लेटर सेड, लेटर मतलब बाद में यहाँ पे जिक्र हुआ है मैडम फस्टियर का। तो मैडम फस्टियर ने बोला फ्रिजिड टोन में, फ्रिजिड भी लिखा है हमने यहाँ पे, फ्रिजिड मीन्स फॉर्मल। हम अपने फ्रेंड से फॉर्मल से बात करेंगे, इनफॉर्मली बात करेंगे, कंधे पे हाथ रख के बात कर सकते हैं, स्कूल वगैरह में नहीं करेंगे। फादर मदर कोई है, कोई बड़े हैं तब नहीं रखेंगे।
तो फॉर्मल वे में वो बोल रही थी मैडम फर्स्ट ईयर लॉयजल को, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था, मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती। हमारा कोई फ्रेंड हो, किसी ने गलती कर दी तो हम लोग बुरी तरह से नहीं बोल सकते। अगर नॉर्मली बोले, बिना मुस्कुरा के बोलेंगे, बिना स्माइल के, तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उससे बुरा लगेगा कि मेरा फ्रेंड हमेशा मुस्कुरा के बोलता है, मैं स्माइल करके मुस्कुरा के नहीं बोला। Madame Fostier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? Madame Fostier ने जिसकी ज्वेलरी उधार ली थी मैडम लॉयजल, तो मैडम फर्स्टियर ने वो ज्वेल बॉक्स खोल के नहीं देखा। इस बात का डर था लॉयजल को, डर था मैडम लॉयजल को, डर था कि ऐसा नहीं खोल के देख ली और खोल के देखी और पता चले कि सब्स्टिट्यूशन ही है, वो नहीं है, उसके बदले कुछ और है, कुछ और मतलब वैसा ही है। अगर डिफरेंस पता चल जाए तो फिर क्या कहेगी, वो क्या सोचेगी मैं चोर हूं। अगर खोल के देख ले, उसे लगे कि अलग है, तो मुझे चोर भी समझ सकती है। Madame Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. DEBT, इसे पढ़ते हैं डेट, जो हम लोन वगैरह लेते हैं, उधार लेते हैं, उस अमाउंट को उसको बोलते हैं डेट, DEBT. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. अब मैडम लॉयजल ने क्या किया, हॉरिबल लाइफ को फेस किया। अब बैड टाइम आ गया था, जो जरूरत के लिए काफी ज्यादा चीजों की जरूरत है, पैसे नहीं है, पैसे कम है, क्योंकि क्रेडिट जो लोन लिया है, पैसे उधार लिए, वो लौटाना भी है। लेकिन अपना पार्ट हीरोइकली किया था, बिल्कुल हीरो की तरह, बहादुर लोगों की तरह किया था। जैसे हम हैप्पीनेस को फेस करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो डरना नहीं है, उसको फेस करना है। कैसे हम फेस करते हैं, और एक प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो हमें और ज्यादा करेज आएगा, हिम्मत आएगी, सेकंड प्रॉब्लम को भी फेस कर लेंगे। ऐसा नहीं कि पीछे भाग नहीं गई, नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, ऐसा नहीं किया उसने, क्योंकि इस फ्राइटफुल डेट, ये जो भयानक कर्ज जो था, इसको लौटाना बहुत जरूरी था, रिटर्न करना जरूरी था। और पैसे दे भी दी, लेकिन देने के पहले क्या क्या चीजें हुई थी। मेड को हटा दिया, जो नौकरानी घर का काम करने के लिए आती थी, उसे हटा दिया, क्योंकि उसको हटाएंगे तो वो काम मैडम लॉयजल करेगी और पैसे बचेंगे, पैसे की जरूरत थी। लॉजिंग, जिस घर में लोग पहले रहते थे, अच्छा खासा घर था, मकान था, किराए पे लिया, तो उस घर को चेंज कर दिया, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे किराए देने के लिए। एक जगह रूम्स लिए किराए पे, एटिक मतलब घर के छत पे जो रूम हो, यानी कि बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रेंट कम लगेगा, क्योंकि वो पैसे बचेंगे और वो पैसे वो इसमें जो लोन लिया है उस पे लौटाएगी वो। तो यहां तक जो है कि फेस जो किया, जो प्रॉब्लम जो आई, प्रॉब्लम को फेस किया, प्रॉब्लम से भागी नहीं, और ना उसका हस्बैंड भागा, क्योंकि लगा कि गलती हो गई है हम लोगों से। अब पैसे हम उधार लेकर के हमने ज्वेलरी को वापस भी कर दी, लेकिन अब उन लोगों का कर्ज जो है वो कर्ज चुकाना है। कोई अगर दूसरा इंसान होता तो शायद ऐसा करता है कि छोड़ो ना, चोरी हो गई बोल दूंगी या बोल दूंगा कि वो नेकलेस चोरी हो गई, तुम्हें कुछ पैसे करके मैं दे दूंगा या दे दूंगी, अभी नहीं, वो कुछ नहीं कर पाते। हम अगर किसी से कोई चीज ले लें और अगर नहीं दे, कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी है, पेपर बनाओ थोड़ी है, साइन किया थोड़ी, या हमसे कोई ले लो वो नहीं दे, तो ऐसा कर सकता है। ओनली दिस ह्यूमैनिटी, इंसानियत हमारी, कि अगर हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो उसको उसी फॉर्म में वापस भी करें, लौटाएंगे भी, ये इंसानियत है।
और जो इंसान लौटाने के बारे में सोचता है, डिसऑनेस्टी के बारे में नहीं सोचता है, वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा। उसे लाइफ में डिसऑनेस्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड हियर इन पेज नंबर 44 second paragraph. Remaining part will complete in our next class. Thank you very much.